बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ द इकोइंग ग्रीन। ये पोइम की एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 के टॉप पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर है एक्सरसाइज। पार्ट नंबर है इसका अंडरस्टैंडिंग द पोइम, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट नंबर ए है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम। तो इसका आंसर है एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम द सन इज राइजिंग सो इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। पार्ट नंबर बी, विच वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा क्रिएट अ cheerful mood? Word from the first stanza which create a cheerful mood are happy, merry, welcome, sing, and cheerful. C. In the second stanza, what are the older people doing and what does it makes them remember? In the second stanza, the older people are laughing at the children playing. It makes them remember that when they used to play happily on the green when they were young. So it reminds them of their youth when they enjoyed themselves at the echoing green. D. In the final stanza, what time of day is it? In the final stanza, the sun is going down, so it is evening. E. In the final stanza, what happened to the children? In the final stanza, the children are tired and ready for rest, so they sit with their mothers instead of playing. F. In the final stanza, the poet creates an interesting image by comparing the mother and her children to a type of animal. What animal are they compared to? What are they doing? What is the effect of using this comprehension? In the last paragraph, the poet compares a mother and her child to a bird and its young one. Just as young bird want to return to their nests at the end of a tiring day, children also want to return home to their beds and their parents. अब आ जाते हैं जी पार्ट पर। जी पार्ट है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम। तो इसका आंसर है बर्ड्स, शार्क एंड थ्रश। H. Make a list of sound mentioned in the poem which stanza does not have any sound mentioned in it. तो इसका आंसर है a list of sound mentioned in the poem bells ringing, bird song, laughter, voices of the old folk, the echoing green. No sound are mentioned in the final stanza. इसके बाद फिर आ जाते हैं I. What do you notice about the last line of each stanza? Say how they are similar, how they are different. ठीक है, तो इसका आंसर है the last line of each stanza refers to the green echoing green, and so they are similar, they are different as they refer to varying time points in one's life from youth to old age. अब आ जाते हैं हम लोग जे पार्ट पर। हाउ डज द डिफरेंस इन द लास्ट लाइन इफेक्ट द मूड ऑफ द एंड ऑफ द पोएम? तो इसका आंसर है the difference in the last line make the mood of the poem somber at the end. When the poem begins, there is a note of hope and opening, while the last line leads to the sense of closure and an ending. ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पर, पंक्चुएशन के ऊपर। पंक्चुएशन है हमारे पास, और रीराइट द फॉलोइंग स्टेंसेस पुटिंग इन कोमास। इसके अंदर आपने कोमा पुट करने हैं। तो ये मैंने आपके सामने सारों के सारे के अंदर कोमा पुट कर दिया है। आप लोगों ने ये पहले ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद फिर नीचे सही वाली जिसके अंदर कोमा वगैरह डला हो वो वाला लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस, आप लोग अभी इतने काबिल हो गए हैं कि आप लोग सेंटेंसेस बना ही सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सी पार्ट पर, लर्निंग अबाउट लैंग्वेजेस। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट एट द सुफिक्स ing एंड ed इन द फॉलोइंग। सुफिक्स क्या होते हैं? सुफिक्स बेसिकली जो वर्ड्स के आखिर में जो वर्ड्स ऐड, जो अल्फ़ाबेट्स ऐड हो रहे हैं, जैसे आई एन जी ई डी, इनको क्या कहते हैं? इनको सुफिक्स कहते हैं। जैसे लाफ है तो लाफिंग या लॉफ्ट, स्टॉप है स्टॉपिंग, स्टॉप्ड, हिट हिटिंग, हिटेड, बॉक्स बॉक्सिंग, बॉक्स्ड। ठीक है, ये सारे इसी तरह से आपने इनके साथ आई एन जी, आखिर में आई एन जी और या फिर ई डी लगा देना है।
ठीक है जी। तो यूँ हमारे पास ये माइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज का सोल्यूशन। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।